So this video is for class 8 student, and in this video we will basically discuss here chemical properties of metal. So at first, how metals react with oxygen, or how non-metals also react with oxygen. So metals as well as non-metals both react with oxygen and form their corresponding either metallic oxides or non-metallic oxides. So metal plus oxygen gives metallic oxides, and these metallic oxides are basic in nature because when these metallic oxides dissolve in water, so give one corresponding base. So all metallic oxides are basic in nature because when metallic oxides dissolve in water, give a base. So metals react with oxygen, form metallic oxide. So several metals like sodium, potassium, magnesium, calcium, zinc, aluminium. So all of these are metals, and these metals react with oxygen and form their corresponding metallic oxides like Na2O. Potassium also react with oxygen, form potassium oxide. Magnesium react with oxygen, form magnesium oxide. Calcium react with oxygen, form calcium oxide. Zinc also react with oxygen, form zinc oxide. With aluminium react with oxygen, form aluminium oxide. So all metals react with oxygen, form their corresponding metallic oxide, but rate of all these reactions are not same. It means if we react sodium with oxygen, then this reaction is just like one explosion reaction or very fast reaction. आपने अगर जैसे ही वो सोडियम के टुकड़े को आप अगर टेबल पे आप अगर रखते हो, तो जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है और जो ऑक्सीजन है उनके प्रेजेंस में वो अंडर 2 और 3 सेकंड वो आग पकड़ लेगा और जलना शुरू हो जाता है. इसका कारण ये है कि सोडियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है. वैसे ही सेम कंडीशन पोटेशियम के साथ होता है, क्योंकि पोटेशियम की रिएक्टिविटी सोडियम से भी ज़्यादा होती है. आप अगर सीजियम मेटल की बात करें तो सीजियम मेटल की रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि अगर वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में अगर आता है तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा और वो एक तरह के एक्सप्लोजन की तरह होगा. मतलब वो कि जो सोडियम का जो हमारा एक नॉर्मल रिएक्शन है जिसको कि हम मान के चल रहे हैं कि ये हायर रिएक्टिव मेटल है, बट सीजियम इससे भी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है और इससे ज़्यादा फास्ट वो रिएक्शन कर सकता है जब आप उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हो. और वैसे मेटल्स जिनकी की रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती है लाइक जिंक, लाइक एल्युमिनियम, लाइक कैल्शियम, सो इन सारे मेटल्स की रिएक्टिविटी हमारे सोडियम वाले से कम होती है. तो इन मेटल्स से जो ऑक्साइड्स के जो फॉर्मेशन होते हैं वो स्लो रेट से होते हैं. बट ऑल मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, फॉर्म देयर करस्पॉन्डिंग मेटालिक ऑक्साइड्स. तो सारे के सारे मेटल अपने करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं. हाँ, कुछ एक मेटल्स फास्ट रिएक्शन करेंगे जिनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी और कुछ एक मेटल्स स्लो रिएक्शन करेंगे जिनकी रिएक्टिविटी कम होगी. एंड ऑल दीज मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर बिकॉज व्हेन दीज मेटालिक ऑक्साइड्स डिसॉल्व इन वाटर गिव अ बेस. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी डिसॉल्व सोडियम ऑक्साइड in water, then it gives sodium hydroxide base. Similarly, potassium oxide also dissolve in water, form potassium hydroxide. Magnesium oxide, when magnesium oxide dissolve in water, give magnesium hydroxide, MgOH2. Like calcium oxide also dissolve in water, form calcium hydroxide. So all these metallic oxides when dissolve in water give a corresponding base. So all metallic oxides are basic in nature. Now all non-metals also react with oxygen, form their corresponding non-metallic oxides like carbon is one non-metal, phosphorus is also one non-metal, sulfur is also one non-metal. So all these non-metals react with oxygen, form their corresponding non-metallic oxides. Like carbon react with oxygen, form carbon dioxide. For example, if we burn coal in presence of oxygen, then coal react with oxygen and form carbon dioxide. Similarly, phosphorus also burn in the presence of oxygen and form P2O5, phosphorus pentaoxide.
sulfur also react with oxygen, form their oxide like SO2. So SO2 is one non-metallic oxide. Similarly, nitrogen also रिएक्ट विद ऑक्सीजन. एक्चुअली यहाँ पे देखना है कि नाइट्रोजन जो होता है हमारा ये सबसे लेस रिएक्टिव नॉन मेटल माना जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल होते हैं, जिसके कारण इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है. एक्चुअली नाइट्रोजन जब तक अपने N2 के फॉर्म में होता है तो ये इनर्ट नेचर को शो करता है. ये कारण है कि आप नाइट्रोजन का जो यूज़ है वो आप टायर वगैरह में भी भरने के लिए करते हैं. कई तरह के चिप्स वगैरह और ये सब के जो पैकेट्स आते हैं इन सभी में नाइट्रोजन गैस को फिल कर दिया जाता है. कारण ये है कि इनकी रिएक्टिविटी इतनी कम होती है कि ये जनरली किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं. बट यहाँ पे मैं एक जनरल पैटर्न को लेके चल रहा हूँ, इसलिए मैंने नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ दिखाया है रिएक्शन में, और NO2 ऑक्साइड्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे. एंड ऑल दीज नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. लाइक मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, बिकॉज दीज नॉन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर एंड फॉर्म द करस्पॉन्डिंग एसिड्स. सो ये जितने भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं ये सभी क्या करते हैं कि वाटर के साथ जब आप इनको डिसॉल्व करते हो तो ये बेसिकली एसिड का फॉर्मेशन करते हैं. एसिड का मतलब ये हुआ कि वो H+ आयन फर्निश करते हैं उस सिस्टम में. इट मीन्स दीज कंपाउंड्स आर एबल टू रिलीज H+ आयन इन एक्वस मीडिया. सो इनके पास कोई भी कंपाउंड्स के पास H अवेलेबल नहीं है, बट आप अगर इनको वाटर में अगर आप डिसॉल्व करते हो तो वैसे केस में ये वाटर वाले H+ को रिलीज करते हैं. सो इनका जो नेचर प्रेडिक्ट किया जाता है वो एसिडिक नेचर के फॉर्म में हम प्रेडिक्ट करते हैं. जैसे आप अगर कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप वाटर में अगर आप डिसॉल्व करते हो तो वैसे केस में ये H2CO3 का फॉर्मेशन करता है, कार्बोनिक एसिड. तो H2CO3 इट मीन्स वॉट, H+ एंड HCO3- आयोनाइज्ड हो जा रहे हैं और वहाँ पर ये H+ फर्निश कर रहा है उस मीडियम में. मतलब ये हुआ कि इसका नेचर एसिडिक प्रेडिक्ट होगा. वैसे ही आप अगर P2O5 की अगर हम बात करते हैं और आपने अगर इसको वाटर के साथ अगर मिलाया है तो वैसे केस में ये H3PO4 का फॉर्मेशन करेगा, जिसको आप फास्फोरिक एसिड बोलते हो. वैसे ही अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड आपने लिया हुआ है और वाटर के साथ अगर आप मिला रहे हो तो सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मेशन ये करेगा, H2SO3. मैं एक चीज़ और भी यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि आप अगर SO2 का अगर फर्दर ऑक्सीडेशन अगर आप करा दो B2O5 के प्रेजेंस में तो वैसे केस में ये SO3 का फॉर्मेशन करेगा, वन अनदर ऑक्साइड ऑफ सल्फर, दैट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड. व्हेन दिस सल्फर ट्राइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर H2SO4 सो फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड. सो H2SO4 का ये फॉर्मेशन कर रहा है जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो, तो वैसे केस में ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड आपका. और जब आप सल्फर डाइऑक्साइड आप यूज़ कर रहे हो तो वैसे केस में ये सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है. इट मीन्स कि सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड. वैसे ही नाइट्रोजन NO2 ऑल्सो रिएक्ट विथ वाटर and form nitric acid HNO3. So all non-metallic oxides are acidic in nature and all metallic oxides are basic in nature. So these are chemical properties of a metal and as well as non-metal. Reaction of metal with water or water vapor. So all metals which are higher in reactivity series or in top of the reactivity series, or we can say that ki all metals which are higher reactive metal can easily react with water and form their corresponding hydroxide. And metals or reactive metals react with water vapor and form their corresponding metallic oxides. So metal react with liquid water form hydroxide and metals react with water vapor form oxide. For example, sodium react with liquid water form sodium hydroxide and also release hydrogen gas. Whereas this metal sodium react with H2O in their gaseous form or vapor form at first sodium oxide and release hydrogen gas here. इट मीन्स कि जो आपका सोडियम मेटल है वो आपका लिक्विड वाटर के साथ अगर आप रिएक्ट कराते हो तो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि यहाँ पे वाटर आपका लिक्विड स्टेट को एग्जिट कर रहा है. और आप अगर उसके गैसियस फॉर्म को अगर आप इस्तेमाल करते हो, इट मीन्स स्टीम का अगर आप यूज़ करते हो, वेपर का अगर आप इस्तेमाल करते हो, तो वैसे केस में ये ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है. वैसे ही मैग्नीशियम के साथ भी होता है.
बट मैं यहाँ पे कैल्शियम ले रहा हूँ कि कैल्शियम को भी आप अगर वाटर अगर लिक्विड फॉर्म के साथ अगर आप रिएक्ट कराते हो तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस हियर। और वही कैल्शियम आप अगर इसको H2O के अगर स्टीम के साथ अगर आप रिएक्ट कराते हो तो ये पहले कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। जब हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम बेसिकली कोल्ड वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है, वो ज़्यादातर स्टीम में ही रिएक्ट करेगा। सो आप अगर मैग्नीशियम की अगर हम बात करते हैं तो ये कोल्ड वाटर के साथ तो इसका रिएक्शन ही नहीं होता है, बट हॉट वाटर में वो रिएक्ट करता है। और स्टीम के साथ जब वो रिएक्ट करता है आपका मैग्नीशियम गैसियस फॉर्म में यानी वेपर के फॉर्म में अगर वाटर है, स्टीम के साथ अगर वो रिएक्ट कर रहा है तो वैसे केस में जैसे ही वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर ये मैग्नीशियम के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैग्नीशियम की। लेकिन यही मैग्नीशियम अगर आप इस मैग्नीशियम को अगर आप पहले जला रहे हो, यानी हमने क्या किया है कि एक कॉनिकल फनल हमने कुछ ऐसा लिया हुआ है, मैंने इसके अंदर वाटर ले रखा है और इसको गर्म कर रहा हूँ नीचे से बर्नर के हेल्प से, वाटर लिया हुआ है। अब इधर से वेपर बाहर आएगा और आपने अगर इधर एक मैग्नीशियम का रिबन अगर ले रखा है पहले से और आपने अगर इसको आग लगा दिया, जस्ट इसको कैच फायर, तो आपने आग लगा दिया इस पर मैग्नीशियम के रिबन में। तो जैसे ही आप मैग्नीशियम के रिबन में आग लगाओगे तो मैग्नीशियम क्या करेगा कि मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड दैट मैग्नीशियम ऑक्साइड अगेन रिएक्ट विथ H2O जो आपका गैसियस फॉर्म में भी अगर है तो वो क्या करेगा कि मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड का वहाँ पे फॉर्मेशन कर देगा एंड साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो ये अलग अलग कंडीशंस में जो भी मेटल्स होते हैं वो अलग अलग फॉर्मेट में रिएक्ट करते हैं, यानी सारे मेटल्स किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन देयर रिएक्टिविटी वो अलग अलग पैटर्न से डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करेंगे। बट इन जनरल ऐसा होगा कि आप अगर कोई भी मेटल लोगे, आप अगर उसके लिक्विड स्टेट के साथ अगर आप उसको रिएक्ट करा रहे हो तो वैसे केस में मेटल लिक्विड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, और वही मेटल अगर स्टीम के साथ या वेपर के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है तो वैसे केस में वो अपने कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। All metals react with acid, form their corresponding salt and liberate hydrogen gas. Actually, acid-metal reaction is a part of displacement reaction where one highly reactive metal displaces hydrogen from acid. So, if one metal react with one acid, then it gives metal salt and release hydrogen gas here. Actually, this is just like a displacement reaction. So यहाँ पे क्या होता है कि मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, जिसके कारण उस हाइड्रोजन को उस एसिड से वो हटाता है और खुद उसके प्लेस को एक्वायर करता है और एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम इज वन मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सो reactivity of sodium is more than that of hydrogen, so it just attend the place of hydrogen in hydrochloric acid and form NaCl salt and release hydrogen gas. Similarly, all metals like magnesium also react with hydrochloric acid, form magnesium chloride MgCl2 plus release hydrogen gas here. So this magnesium also react with another acid, आप कोई भी acid यहाँ पे use कर सकते हो except HNO3. सो ओनली इन केस ऑफ HNO3 हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होता है। वहाँ पे HNO3 का अगर आप इस्तेमाल करोगे, यानी आप अगर मेटल एसिड अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप सारे के सारे एसिड को यहाँ यूज़ कर सकते हो एक्सेप्ट HNO3, क्योंकि HNO3 के केस में हाइड्रोजन सिर्फ रिलीज नहीं होगा, वहाँ पे सॉल्ट बनेगा, बट HNO3 इटसेल्फ ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। तो वो क्या करता है कि नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है, जिस सिस्टम में कि आप रिएक्शन करा रहे हो वहाँ पर वो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। तो वो नेसेंट ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर के वाटर का फॉर्मेशन कर लेता है। यानी जब भी आप अगर एक मेटल का रिएक्शन अगर आप नाइट्रिक एसिड के साथ, पर्टिकुलर HNO3 के साथ अगर आप कराते हो नाइट्रिक एसिड, तो वैसे केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा। बाकी आप जितना भी कोई भी अगर आप एसिड लो, मेटल के साथ आप अगर रिएक्ट कराते हो तो वैसे केस में मेटालिक सॉल्ट्स बनेंगे एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। बट ओनली इन केस ऑफ HNO3 वाटर का फॉर्मेशन होगा, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि HNO3 इटसेल्फ वन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि HNO3 इटसेल्फ एक ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है, सो इट विल प्रोवाइड नेसेंट ऑक्सीजन टू द सिस्टम।
ये उस सिस्टम को जिसमें आप रिएक्ट करा रहे हो वहाँ पर ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, और वो नेसेंट ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर के वाटर का फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण HNO3 मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते हैं। बाकी सारे एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो करस्पॉन्डिंग मेटालिक सॉल्ट्स बनेंगे एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होंगी। फॉर एग्जाम्पल अनदर मैग्नीशियम react with another acid like sulfuric acid H2SO4, then again it form magnesium sulfate MgSO4 plus release hydrogen gas here. Similarly calcium also react with sulfuric acid H2SO4, form calcium sulfate CaSO4 and release hydrogen gas here. So all metals except those metals which are lower reactive than hydrogen, तो आप अगर उनको छोड़ दो जिनकी की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होती है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, जिनको आप नोबल मेटल भी आप बोलते हो, तो उन मेटल्स को छोड़ के बाकी सारे के सारे मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और एसिड के साथ रिएक्ट करके वो अपने कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं। लेकिन वैसे मेटल रिएक्ट नहीं करेंगे जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम हो, क्योंकि अगर इस मेटल की रिएक्टिविटी इस हाइड्रोजन से अगर कम होगी तो ये मेटल इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके अपना ऑन सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। तो अपना ऑन सॉल्ट का ये फॉर्मेशन तभी करेगा जब इस मेटल की रिएक्टिविटी इस हाइड्रोजन से ज़्यादा हो। इट मीन्स कि ये रिएक्शन पैटर्न तभी फॉलो होगा जब आपका मेटल की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा हो और दूसरा एसिड हमारा HNO3 नहीं हो, यानी HNO3 को छोड़कर और इधर वैसे मेटल्स को छोड़ देना है जिनकी रिएक्टिविटी हमारी हाइड्रोजन से कम है, जैसा गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड नोबल मेटल। सो आप अगर इधर से कोई भी आप अगर दूसरा भी मेटल अगर मैं लेता हूँ, चलिए मैंने जिंक लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर आप रिएक्ट कराते हो तो सेम पैटर्न ये फॉलो करेगा एंड जिंक क्लोराइड ZnCl2 का फॉर्मेशन होगा एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अब कहेंगे कि सर वैसे मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है लाइक सोडियम एंड पोटेशियम कैन इजीली रिएक्ट विथ एसिड एंड फॉर्म देयर करस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस, बट व्हाट हैपन विथ दोज मेटल्स विच आर लेस रिएक्टिव लाइक जिंक और लाइक कॉपर। तो अगर आप ऐसे मेटल्स आप अगर यूज़ करते हो जिनकी रिएक्टिविटी अगर बहुत कम है तो वैसे केस में या तो वो बहुत स्लो रिएक्शन करेगा या फिर नहीं करेगा। वैसे केस में आप अगर उसको हीट एनर्जी अगर प्रोवाइड करते हो सिस्टम को तो वो रिएक्शन धीरे धीरे प्रोसीड होना शुरू होगा। जैसे जिंक अगर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है तो इट्स अ स्लो रिएक्शन। ये नॉर्मल एक रिएक्शन है जो नॉर्मल वे में होता है, क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा। लेकिन अगर आप उसी सिस्टम को थोड़ा गर्म कर देंगे तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। कारण ये है कि उसके अंदर के जो इफेक्टिव कॉलिजन्स हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। जब आप किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर को आप राइज करते हो तो वैसे केस में जो केमिकल काइनेटिक एनर्जीज हैं पार्टिकल्स की वो बढ़ जाती हैं, जिसके कारण नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ते हैं और इफेक्टिव कॉलिजन्स ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा। वैसे ही आप अगर कॉपर लेते हो तो वो नॉर्मल केस में किसी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर हम उसी एसिड और कॉपर के सिस्टम को अगर आप वार्म कर दें, अगर आप गर्म करना शुरू कर दें तो वही कॉपर उस एसिड के साथ रिएक्ट करता है और अपने सॉल्ट का भी फॉर्मेशन करेगा एंड हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करेगा। So one metal react with salt, form one another salt. So मैं इस salt को बोल रहा हूँ salt 2 and this one is salt 1 here. So ये salt और ये salt ये दोनों ही एक दूसरे से अलग होते हैं और फिर बाद में यहाँ पर एक metal भी आपका displaced हो जाता है और ये मेटल नीचे बॉटम में बैठेगा, बट ये मेटल 2 मैं यहाँ पे इसका नाम दे रहा हूँ और मैं इस मेटल को यहाँ पे मेटल 1 नाम दे रहा हूँ। मतलब ये दोनों ही एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं। एंड दिस वन इज एक्चुअली नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर दोज केमिकल रिएक्शन इन विच वन मेटल डिस्प्लेस one higher reactive metal displace a lower reactive metal from their salt solution। तो आप अगर एक higher reactive metal का अगर आप किसी भी salt में आप अगर इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे अगर जिंक को लिया है जो कि ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन के कंपैरिजन में, सो हियर रिएक्टिविटी ऑफ जिंक इज मोर देन दैट ऑफ आयरन। सो हमारा सॉल्ट 1 है आयरन सल्फेट और मेटल 1 है हमारा जिंक, एंड द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक इज मोर देन दैट ऑफ आयरन। सो जिंक विल easily displace iron from their solution and form zinc sulfate and displace this iron metal here। सो आयरन आपने जो मेटल 2 जिसका नाम दिया है वो हमारा आयरन है
और जिसे मैंने मेटल 1 नाम दिया है वो हमारा जिंक है। मैंने जिसे सॉल्ट 1 कहा है वो हमारा आयरन सल्फेट है, और जिसे मैंने सॉल्ट 2 कहा है वो हमारा जिंक सल्फेट है इस रिएक्शन के लिए। आप अगर किसी दूसरे रिएक्शंस की भी अगर हम बात करें, जैसे आप अगर आयरन का ही एक टुकड़ा लो और कॉपर सल्फेट के अगर आप सॉल्यूशन में अगर इसको डिप करते हो तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो ब्लू कलर का होता है, और आयरन की रिएक्टिविटी यहाँ पे ज़्यादा है कॉपर के कंपैरिजन में। सो रिएक्टिविटी ऑफ आयरन इज मोर देन दैट ऑफ कॉपर, सो आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम देयर सॉल्ट एंड फॉर्म आयरन सल्फेट FeSO4 एंड डिस्प्लेस कॉपर, और सेटल ये जो कॉपर होगा आपका वो जस्ट सेटल डाउन इन द बॉटम, वो बॉटम के ऊपर आपका सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा पेंदी में आफ्टर रिएक्शन। एंड द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ब्लू एंड द कलर ऑफ आयरन सल्फेट इज ग्रीन हियर। सो जस्ट चेंज इन कलर ये आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि सर दिस वन इज मस्ट बी अ काइंड ऑफ केमिकल चेंज, एंड इन दिस रिएक्शन one higher reactive metal displaces a lower reactive metal from their salt solution। so आपने यहाँ पर जो भी लिया हुआ है ये सभी aqueous form में है। aqueous it means water इसमें मिला हुआ है आपका। so aqueous form में हमने solutions लिया हुआ है। तो आप अगर किसी भी एक higher reactive metal को एक लोअर रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट में अगर आप डालते हो उसके सॉल्यूशन के फॉर्म में, तो वैसे केस में वो हायर रिएक्टिव मेटल उस लोअर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है और अपना ऑन सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, एंड दिस रिएक्शन इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो यहाँ पर एक मेटल की रिएक्टिविटी का इस्तेमाल आप करते हो और एक लोअर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करते हो। आप अनदर एग्जांपल्स भी यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर मैं जिंक का रिएक्शन अगर मैं कॉपर सल्फेट के साथ अगर कराता हूँ तो कॉपर सल्फेट हमारा ब्लू कलर का होता है, जैसे ही जिंक डालेंगे इसका कलर चेंज होगा और ये ग्रे कलर व्हाइट कलर के एक फॉर्म लिक्विड फॉर्म में जाएगा, जहाँ पर कि ये जिंक के सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा और कॉपर नीचे बॉटम में सेटल डाउन होगा। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वेयर वन हायर रिएक्टिव मेटल displaces a lower reactive metal from their salt solution।